વાત કરીએ તો મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। અગ્નિપથ યોજનાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। બિહારમાં પરિસ્થિતિ બેકાબુ થયેલી જોવા મળી રહી છે। મહત્વનું છે કે અનેક ટ્રેનોમાં આગથી કરોડોની સંપત્તિ રાખ થઈ ગઈ છે। મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ પર નજર કરીએ તો સમસ્તીપુર અને લખીસરાયમાં યુવકોએ ટ્રેનમાં આગ લગાવી હતી તો બિહિયામાં ભારે હોબાળો થયો છે અને રેલવે ટ્રેક જામ પણ કરવામાં આવ્યો છે। અગ્નિપથ યોજનાને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। ગઈકાલે પણ ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા હતા યુવાનો દ્વારા। ત્યારે આજે વધુ એક અપડેટ આવી છે। અગ્નિપથ યોજનાને લઈને હજુ પણ વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે યુવાનો દ્વારા। જે પ્રકારે બિહારમાં પરિસ્થિતિ બેકાબુ થયેલી જોવા મળી રહી છે। એક બાજુ પોલીસ દ્વારા તો સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ બિહારમાં જે પ્રકારે ટ્રેનને સળગાવી દેવામાં આવી રહી છે, પાટા પર જે પ્રકારે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે માહોલ ખૂબ જ ગરમાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। આપ ટી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે આ સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરવા માટે પોલીસે ટીયર ગેસ પણ છોડવા પડ્યા છે। એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ આવી છે, જેના કારણે ત્યાંનો માહોલ ખૂબ જ દોડાયેલો જોવા મળ્યો હતો। જે પ્રકારે અગ્નિપથ યોજનાનું એલાન કરવામાં આવ્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા, ત્યારબાદ ઠેર ઠેર હોબાળો કરવામાં આવી રહ્યો છે, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે, પથ્થરમારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। હિમાચલથી માંડીને દિલ્હી સુધી આગ ભભૂકેલી જોવા મળી રહી છે। યુવાનો દ્વારા સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે 2 વર્ષના જે દરમિયાન કોરોનાનો કાળ હતો તે દરમિયાન તેમણે સતત મહેનત કરી અને અચાનક આ પ્રકારની યોજના સામે આવે છે ત્યારે તેમને ખરેખર દુઃખ થઈ રહ્યું છે અને તેના કારણે જ ઠેર ઠેર યુવાનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે। આપ જોઈ શકો છો ટીવી સ્ક્રીન પર જે પ્રકારે પોલીસ દ્વારા ટીયર ગેસ છોડવામાં આવી રહ્યો છે અને ટ્રેનોમાં આગ લગાવવામાં આવી હતી યુવકો દ્વારા। ત્યારે યુવકોએ જે પ્રકારે વિરોધ પ્રદર્શન વ્યક્ત કર્યો છે, પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો છે સરકારની સામે, કારણ કે જે પ્રકારે અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારબાદ અનેક જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આજે બિહારથી સમાચાર સામે આવ્યા છે। બિહારમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ બેકાબુ થયેલી જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને બિહારના સમસ્તીપુર અને લખીસરાયમાં યુવકોએ હોબાળો મચાવ્યો છે। તેમણે બેનરો સાથે સરકાર સામે ખૂબ જ આક્રોશ ઠાલવ્યો છે। વધુ વિગત જાણવા માટે આપણી સાથે દિલ્હીથી જોડાઈ ગયા છે રક્ષા વિશ્લેષક અને તેમની પાસેથી જ આપણે માહિતી જાણીશું। जी, आप वहाँ पे हो और आपको पता है कि अभी सब जगह माहौल बहुत ही गर्मा हुआ है और अग्निपथ योजना आई है तब से सब लोग बहुत ही आक्रोश में आके सब जगह कर रहे हैं और अभी बिहार में जो परिस्थिति आके देख रही है, तो आपके पास क्या है अपडेट? क्योंकि ये माहौल बहुत ही ज़्यादा तेजी हो रहा है, सब जगह ऐसे यंगस्टर्स भी ज़्यादा एंग्री बता रहे हैं, तो आपके पास क्या है अपडेट? देखिए मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, यह अग्निपथ योजना जो सेना में 4 साल की भर्ती के लिए आदेश भारत सरकार की हुई है और अग्निवीर के नाम पे इनको जॉब 4 साल की दी जा रही है। इस दिमाग के बाद हम वापस होने पे हमारे भविष्य और हमारे परिवार की भविष्य क्या होगी। लेकिन सच बात यह है कि जरूर इस संदेश को लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए था, लेकिन ये जो और अग्निवीर का जो कार्यक्रम है, ये देश के लिए आज दुनिया में इस तरह के हालात ऐसे बन रहे हैं कि यंग फौज की जरूरत है और ये लड़के जब हर साल 45,000 भर्ती होंगे तो देश के लिए एक यंग मतलब फौजी इकट्ठे होंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बिहार के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि रोजगार की कमी है और मैक्सिमम लड़के फौज और आर्मड फोर्सेस प्राइवेट में जाने की आदत रखते हैं, तो ये पूरे बिहार के अंदर एक आक्रोश हो गया है कि यंग लड़कों का भविष्य जो है वो खतरनाक स्थिति में है। लेकिन सच बात यह है कि आज भारत सरकार ने रात में 21 से लेकर 23 साल की उम्र इनकी बढ़ा दी है। अगर किसी को उम्र की समस्या हो तो वो भी दूर हो जाएगी, लेकिन किसी चीज को केवल आक्रोश और भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। कुछ पार्टियां भी हैं जो इन नए लड़कों को समस्तीपुर हो, आरा हो, छपरा हो, यहाँ पे एक हंगामा क्रिएट हो रहा है
और रेलवे संपत्ति जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, अगर वो देश की संपत्ति को जलाते हैं, ये तो बहुत दुखद और शर्मनाक स्थिति है। लेकिन भारत सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश में है। आपने बात कही ललन सिंह जी, आपने बात कही कुछ पार्टियां, तो आपका सीधा इशारा किस तरफ है, क्योंकि आपने पार्टी की बात कही है? हाँ, मैं एकदम साफ कहता हूँ कि अगर पक्ष ने कोई गलती की है तो रिव्यू सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि उसमें आप देखिए अपोजिशन का, आरजेडी का कल से पूरे बिहार के अंदर प्रदर्शन होने जा रहा है प्रखंड स्तर पे। ये क्या हो रहा है? अगर भारत की कोई नीति गलत उनको लग रहा है तो संवाद और वार्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान है। लेकिन ये जो अग्निवीर कार्यक्रम है, हर साल 45,000, इसका एक चीज याद रखना है कि भारत सरकार ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि सामरिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत होती है और हर साल 55,000 लोग पेंशन मिलिट्री से आते हैं। तो अगर लड़के यंग आएंगे, 4 साल के बाद उनको पैरामिलिट्री में नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट में भी उनको प्राथमिकता देने की बात हो रही है। तो ये कुछ पार्टियां अनावश्यक रूप से बिहार के अंदर आक्रोश और आफत मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये अच्छी बात नहीं है। आखिर राष्ट्रीय संपत्ति हमारे देश की है। रेलवे में समस्तीपुर में आग लगा देना, छपरा और आरा के अंदर अपना तफरी मचा देना बिहार में ज्यादा हो चुका है। कारण क्या है? बिहार में रोजगार की कमी है। लोग एक सेना पैरामिलिट्री में ज्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो योजना है, अगर इसको सोचा जाए, ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी ललन सिंह, आपने तो बहुत सारी बातें कह दी, पर सवाल यहाँ से ये आता है कि आपने सरकार की बात कही, तो बिहार की सरकार का क्या कहना है? क्योंकि आप वहां से हो, आपकी बातें आ रही है वहां से कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बिहार की सरकार है, उनका क्या कहना है? अभी बिहार की एनडीए की सरकार है, इसमें बीजेपी और जनता यूनाइटेड भी है। आज बहुत सख्त ऑर्डर नीतीश कुमार जी क्या हुआ है कि जो भी लोग चिन्हित किए जाए, जो हंगामा, हिंसा और प्रदर्शन और राष्ट्रीय संपत्ति को जलाते हैं, उनके ऊपर वीडियो और सीसीटीवी कैमरे से उनको चिन्हित करके और वो दंड के भागी बनेंगे। लेकिन क्या होता है कि वोट और तुष्टीकरण, इन सभी बातों को देखते हुए जो हालात हैं उसके ऊपर बहुत बेहतर एक्शन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश से बढ़ती जा रही है। तो जरूरी है कि वोट का स्वार्थ ना देखा जाए और एनडीए जो है, अगर मिली जुली सरकार है तो यहाँ सख्त होना निहायत जरूरी है, जो कि नहीं नजर आ रहा है। हो जा सकता है अगर किसी तरह का दिक्कत है, 3 महीने के बाद ये भर्ती स्टार्ट होगा। अभी घबराने की कोई बात नहीं है। लगातार जो आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, इसके फायदे और इसके समस्याओं के बारे में समाधान कर रहे हैं। तो फिर ये पूरे बिहार में जो आक्रोश हो रहा है, ये भी एक राजनीतिक चाल हो सकता है। जी ललन सिंह, आपने कही कि ये राजनीतिक चाल कहा जा सकता है, तो वहां पे जैसे ये ट्रेन का ये मसला हुआ, वहां पे ट्रेन को जला दिया, तो युवाओं को क्या ये सिखाया जा सकता है? क्योंकि वहां पे जैसे एक ही है जो सॉल्यूशन, या दूसरा भी है? सरकार को कहना भी चाहिए। सबको पता है खेडूत आंदोलन हुआ था, जो फार्मर्स का हुआ था, तब जगह किसी ने ऐसा नहीं किया था, पर अब जो ये मामला आया है, आपको क्या लगता है कि ये ठीक बात है ऐसे ट्रेन को जलाने का? एकदम गलत है। राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने का किसी को भी हक नहीं है। और अगर इसको कोई नेता या दल इसको अपने भोट के लिए, तो ये शर्मनाक और दुखद स्थिति है। पूरे भारत में आंतरिक सुरक्षा अभी डिस्टर्ब है। इनको पता है कि जब मैं सेना में जाऊंगा तो सेना देश के लिए होता है, और आप देश में जाने से पहले ही इस राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और किसी पार्टियों के कार्यालय को जा रहे हैं। ये तो शर्मनाक स्थिति है। और ऐसे लोग अगर पुलिस के एक बार FIR में आ जाएंगे, इनको जॉब मिलने की वेरिफिकेशन की एकदम सवाल पैदा नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसे रक्षा जानकार कि जो बिहार के अंदर अभी हो रहा है, ये सोची समझी रणनीति इसमें शामिल है। और यहाँ पे भी एक सत्ता पे काबिज होने का एक माध्यम ये चुन रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं बोलना चाहता हूँ, इजराइल के जैसा बनना चाहते हैं तो फिर इजराइल के जैसा सोच भी रखना पड़ेगा। ये कौन सा सोच है कि आप अग्नि कर रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, आप किसी ऑफिस को जला रहे हैं और लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति है, जिसके ऊपर सभी दलों को बातचीत और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसमें आज की जरूरत है। जी ललन सिंह, आप खुद रक्षा विश्लेषक हैं, आपको सारी बातें पता है, इस योजना की भी आपको पता है कि क्या इस योजना में आता है।
तो आपका क्या सजेशन है, क्या बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि जैसे युवानों जो यंगस्टर्स होते हैं वो अभी बहुत ही एंग्री है, उनको लगता है कि ये जो योजना है उनके लिए नहीं है। तो आपका क्या सजेशन है जिससे कुछ बदलाव आ सके? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हाँ मैडम, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। जो नए लड़के हैं उनको संदेश तो पहले जाना चाहिए था कि जो ये 4 साल का जो आर्मी और एयरफोर्स नेवी की सेवा है उसमें ये फायदे हैं। आपको इस तरह की सैलरी मिलेंगी और वापस आने के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री विश्वविद्यालय की तरफ से दी जा रही है और आपको कॉर्पोरेट, पैरामिलिट्री, आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपको लोन की जो मतलब स्थिति है उसके लिए भी भारत सरकार फाइनेंस को और उसको दे चुका है। संदेश पूरी तौर पे लोगों को देना चाहिए था, जो शायद नहीं दे पाए। इसका भी एक कारण है इस आक्रोश का, लेकिन अभी भी समय है, 3 महीने के बाद इनरोलमेंट होगा, तो इनके लिए, नए लड़कों के लिए इस तरह की बातें बतानी चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको केवल राजनीतिक नहीं इसमें करना, देश के प्रति भी कुछ उनकी भावनाएं अभी होनी चाहिए। और आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हर नागरिक, हर राजनीतिक दल ये बात सभी लड़कों को, यंग, चाहे वो मुखिया स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यंग लड़के को आक्रोशित नहीं होने देना, ये हमारी आज की जरूरत है। ये मैं बोलने में कोई हिचक नहीं महसूस करता हूँ। जी धन्यवाद। तो જે પ્રમાણે લનનસિંહ જે રક્ષા વિશ્લેષક છે તેમણે જણાવ્યું કે અત્યારે જે પ્રકારે માહોલ ત્યાં સર્જાયો છે તે ખૂબ જ દર્દનાક થયેલો છે, કારણ કે પરિસ્થિતિ બેકાબૂ થયેલી જોવા મળી રહી છે। યુવાનોમાં સતત આક્રોશ ફાટેલો જોવા મળી રહ્યો છે। યુવાનો સતત એવી વાત જણાવી રહ્યા છે કે આ યોજના તેમના માટે યોગ્ય નથી અને તેને લઈને જ તેમણે વિરોધ દર્શાવ્યો છે। પરંતુ અહીં સવાલ એ થાય છે કે શું વિરોધ જ એકમાત્ર ઉપાય છે?